Asian Institute of Technology, Thailand, during my third year of graduation. And whenever I get free time, I love to spend time with my family as well as hang out with friends. Thank you, ma'am. Okay, all right. Like you mentioned that you love to spend time with your family, right? So if you are posted at a remote location where your family cannot stay with you, there are certain barriers. Like वहाँ पे proper सारी facilities नहीं है. As an individual आप रह सकते हैं, but सारी family को लेकर रह पाना थोड़ा सा मुश्किल है. तो how will you manage? Yes, ma'am. There is no doubt that I love to spend time with my family. But again, when I will be posted as an AFO, so I will consider it as a chance for my growth as well as for my growth. So when I will consider this growth factor, so I will manage that mind of spending time with my family, because मेरे लिए ये growth का बहुत important chance होगा, तो मैं अपनी growth के लिए उस चीज को अपने ऊपर मतलब एक तरह से ओवर इम्पैक्ट नहीं करने दूंगा, दैट इट विल नॉट बिकम अ बैरियर फॉर Okay, all right. So what do you understand by KYC? मी। KYC stands for know your customer. It's it's a kind of verification and documentation process done by a bank. Banks, whenever banks, so banks, whatever customers they come to banks, so banks collect full information about their customers so that they can check about the identity of the customers. Like they collect basic documents required, like Aadhaar card or any like passport, which are basic, which tells about the identity as well as the address of the individual. Okay, all right. What do you understand by monetary policies and why are they used for? The monetary policy is one of the instruments used by Central Bank of India, that is RBI. And monetary policy is a tool that is there in the hands of Reserve Bank of India, where Reserve Bank use it to control liquidity in the market, control inflation in the market. There are various instruments in the monetary policy that are being adjusted timely, depending upon the committees, different committees around the year of the RBI, like CRR, SLR, and MSF, reverse repo rate, and there are many more. Okay. What do you understand by CRR? CRR stands for cash reserve ratio. The banks, they are required to maintain a minimum there is a certain percentage of their total deposits which the banks need to maintain with the RBI as a reserve. Okay. And what is the difference between, if you talk about CRR and SLR, what is the basic difference between them? And the basic difference between CRR and SLR is that the CRR is to be maintained in form of cash with the RBI, whereas SLR is not maintained with the RBI. It is maintained at a rate fixed by RBI, but not specifically with the RBI, and it is maintained not in exactly in cash. It is maintained in the form of liquid assets like government securities, bonds, as well as gold. Okay. What do you understand by PM Asha scheme? Uh, When PM ASHA stands for Pradhan Mantri Annadata Aay Surakshan Abhiyan. This scheme is to help the farmers of our country. It's a kind of security schemes for the farmers of the country so that they can get appropriate prices for their produce. Under this, there is a concept of MSP as well, like minimum support price, which the farmers will get for their produce. For the wheat, for different cereals and pulses, oil seeds, there are certain parameter that has been fixed by government of India. For the cereals, government will procure government through FCI, Food Corporation of India. It will procure the cereals as well as oil seeds. And when it comes to pulses, then this government of India through this NCCF and through NAFED, government will procure pulses, and jute through Jute Corporation, cotton through Cotton Corporation. Another component of PM Asha is that government of India introduces PDPS, Price Deficiency Payments scheme, where government will not procure the cereals and goods from the farmers. Rather, government will pay the difference that is there between the actual price in the market and MSP announced by the market.
All right. Do you feel MSP is relevant, and do you feel that farmers are given proper rights to the MSP? I mean, is that beneficial to them? What do you see in your surroundings regarding that? Ma'am, in like when I talk about Himachal Pradesh, so like MSP is mostly there for the crops, like it's for mostly for the cereals as well as pulses crops and few plantation crops like coconut. When it comes to Himachal Pradesh, MSP is not very popular between the farmers of Himachal Pradesh because here people grow cereals like wheat and rice is not a crop of my area. Otherwise, we are because it's a hilly area, so farmers cannot grow rice, but yes, they are growing wheat and maize, but that is being mostly used for subsistence farming for their self-consumption or to some extent for fodder purpose. They are growing like maize. They are not growing it commercially because in my place, like Himachal Pradesh, mostly the farmers they are concerned towards this vegetable crops and fruit crops. Like fruit crops, they are very much favored. Like especially when we talk about like Himachal Pradesh, it is the apple bowl of our country. So my area people, they are mostly focused towards fruit crops and vegetable crops. They are not growing it on cereals and pulses on that very large scale that MSP is of much relevance to them. All right. What do you understand by overdraft facility? And is there any scheme of the government which provides such kind of facility? Ma'am, overdraft is like whenever overdraft is a facility where we can take we can where we can जब हम बैंक से मतलब जितना हमारे बैंक में अकाउंट में मनी है हम उससे थोड़ा सा एक्सेस वी Hmm. कैन विड्रॉ देयर इज अ फैसिलिटी कि हम उससे थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं बट एग्जैक्टली स्कीम आई एम नॉट अवेयर अबाउट. ओके, अंशुमन स्कीम पढ़ लीजिएगा, दैट इज जन धन योजना। जन धन अकाउंट्स जो होते हैं उनमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। ऑलराइट, सो माय लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? और अभी जो प्रैक्टिसेस फार्मर फॉलो कर रहे हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको जो प्रैक्टिसेस प्रमोट करी जा रही हैं बाय एनी ऑफ द मीन्स, क्या वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाती हैं हमारे जो भी सॉइल है या जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनको? First of all, I'd like to define sustainable agriculture. Sustainable agriculture means that agriculture that can sustain, in simple language, that can sustain our environment, that can sustain our soil, that can even sustain economically, that can sustain the farmers as well as host country. तो लाइक अभी जो लेटेस्ट प्रैक्टिसेस जो फार्मर्स के लिए चल रही हैं फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वो बिल्कुल फार्मर्स को उस तरफ लेके जा रही है बिकॉज एज वी कैन सी कि वी आर नाउ इंडिया इज द वन कंट्री जहाँ पे हमने अपनी फूड प्रोडक्शन इस लेवल तक अचीव कर लिया दैट वी आर सेल्फ सफिशिएंट. इवन हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. पर डे बाय डे दो इन्वायरमेंट जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं और अदर रिपोर्ट्स हैं वो ये हमें बता रही है कि हमारे सॉइल की क्वालिटी दिन प्रतिदिन डिग्रेड होती जा रही है. तो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो नेचुरल फार्मिंग को ऑर्गेनिक फार्मिंग को इन चीजों को प्रिसीजन फार्मिंग को इसलिए प्रमोट कर रही हैं बिकॉज वी कैन नॉट लाइक शिफ्ट कि हम अपनी कन्वेंशनल फार्मिंग से एक ही दिन या एक ही साल के अंदर हम इस नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग पर हम शिफ्ट कर लें. बट हाँ धीरे धीरे वी कैन गो फॉर द ट्रांजिशन ताकि हम अपनी हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी है फूड प्रोडक्शन में हम उस पर भी बैलेंस रहे साथ में हम अपनी सॉइल और इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ कर सकें. So a slight means a gradual and a consistent change would help rather than a sudden change in my views. ओके, ऑलराइट अंशुमन, इट वाज ब्रिलियंट। आई मीन आप किसी भी क्वेश्चंस में अटके नहीं। जो रैंडम क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, दैट आल्सो यू आंसर्ड वेरी वेल। एक वो जनधन वाली चीज थी, बट ठीक है, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर ओवरऑल मैं देखूं तो यू वर ब्रिलियंट। द इम्प्रूवमेंट्स दैट यू हैव बीन डूइंग आर ऑन पॉइंट। एंड जो आपने आंसर्स दिए हैं जनरलाइज क्वेश्चंस के, जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, वो सिर्फ आपकी सोच को, आपकी पर्सनालिटी के लिए ही पूछे जाते हैं, वो आपने बहुत ब्यूटीफुली आंसर किए। कीप दिस अप, कीप प्रैक्टिसिंग। एंड व्हेन इज योर इंटरव्यू? Tomorrow. ओके, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो यू विल रॉक इट, यू विल डू योर बेस्ट, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। जस्ट गो विद दिस कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट रहिए, आपको अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे। आई गारंटी दैट यू आर डूइंग रियली वेल। I would like to ask two doubts like या, श्योर, श्योर, श्योर।
I have like I have read about schemes, but I have only read about schemes which are pertaining to agriculture Hmm. and rural development, like not Hmm. like this Jan Dhan schemes or like basic schemes which I have not read, like Ujjwala Yojana. I'm not aware about these schemes. See, So should I read Anjuman, about them? नो, सारी स्कीम्स नहीं पढ़नी है, बट जैसे कि आपने बोला जनधन आपने नहीं पढ़ी है, जनधन इज अबाउट रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि वो एक जीरो बैलेंस अकाउंट जो भी रूरल बैकग्राउंड में लोग रहते थे उनको एक बैंकिंग से जोड़ने का एक जरिया था कि उनका सबका अकाउंट बैंक में होना चाहिए, तो वो एक रूरल डेवलपमेंट स्कीम है, तो वो आपको पढ़ लेनी है। एंड उज्ज्वला योजना इट इज रिलेटेड टू एटलीस्ट जो भी रूरल कम्युनिटी होती है, जो भी सोलर और ये सब चीजें, कुसुम योजना है सोलर के लिए है, वो उज्ज्वला तो गैस सब्सिडी है, बट ये है कि वो रूरल के लिए है, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर कुसुम नहीं पढ़ी है आपने, जनधन नहीं पढ़ी है, तो ये दोनों चीजें आप देख लीजिएगा। Okay, ma'am. Another doubt I have is that like हम्म। I am a single child, so maybe they can like ask me that if you are a single child, so you have more responsibilities towards your parents. So if you are posted like out of state, so how you will be able to manage that? So in that case, what should be the ideal answer from my side? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस थिंग आई वुड वांट टू आस्क यू अ क्रॉस क्वेश्चन। आपने जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की है घर पे रह के की है, या फिर यू हैव बीन टू समवेयर एल्स एंड योर पेरेंट्स आर समवेयर एल्स? I'm a graduate only और ग्रेजुएशन मैंने मैम अपने ही मतलब डिस्ट्रिक्ट से की है लाइक ओके। आई वाज अ डे स्कॉलर ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन नॉट इवन नॉट अ हॉस्टलर ओके, तो आप ये कह सकते हो कि सर मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी एएफओ की, आई ऑलरेडी न्यू इट दैट इट इज अ जॉब इन विच आई विल बी गिवन frequent transfers and I will be posted to a place where I will have to stay alone without my family. And thankful I am to the technology that is growing day by day. I can connect with them every day, every night. I can talk to them, I can see them, and whenever possible, whenever I will have a long duration of holidays in between, like Holi, Diwali, and other festivals, I will make sure I will go home, or I will call them to meet me. So in that way, I can just connect with them. And posting to a remote location doesn't mean that I will be disconnected to my family. I can still take care of them. I can still talk to them. okay ma'am that's all I wanted to ask So you can say like that. okay ma'am any All right, other thank you. like review or feedback I should improve like anything so No, you shouldn't improve anything because you are doing really well. The only thing जो आपने बोला कि आपने सारी स्कीम्स पढ़ी हैं, बट कुछ स्कीम्स जो हैं तो आप देखना है रूरल डेवलपमेंट के जो भी स्कीम्स हैं, यू हैव टू लुक एट देम, बिकॉज ये जनधन ये काफी पुरानी स्कीम है, अभी की स्कीम नहीं है, सो yes यू नीड ma'am टू नो अबाउट दैट। और कुसुम मैंने आपको बताया, कुसुम स्कीम, पीएम कुसुम। और उज्ज्वला की इतनी जरूरत नहीं है, बट इतना देख लो कि वो गैस सब्सिडी स्कीम है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बट बाकी सारी चीजों में आप कॉन्फिडेंट भी हो, आप सही से आंसर भी कर रहे हो, एवरीथिंग यू आर डूइंग रियली वेल। okay ma'am ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? thank you ma'am ऑलराइट, ओके, no ma'am थैंक यू thank सो you मच। ओके, परमेश्वरी। thank you ma'am Hello, ma'am. या ओके, यू आर ऑडिबल। ओके, Am I? yeah, you're audible. Again, I'm telling, if this meeting ends or closes, you will have to join with this on the same link, and I will reconnect again, okay? You don't have to leave, you have to rejoin. Okay, all right. Good morning, Parmeshwari. How are you? Good morning, ma'am. I'm fine, ma'am. All right, please introduce yourself. My name is Parameshwari. I was born and brought up in Madurai, which is known for its vibrant culture in Tamil Nadu. And I completed my bachelor's degree in agricultural engineering at RVS Stickinger campus, Coimbatore. I'm a determined, sincere, and adaptable person. Talking about my family, my father owns a food cart. My mother is a homemaker, and my brother pursuing his MBA. During free times, I enjoy listening songs and I am focusing on my physical and mental fitness. Okay, all right. Like you mentioned that you have a brother and he's doing MBA, right?
So today, in Uh, today's era, where the technology is advancing, MBA is a very nice degree to start your career with, because people are going in IT sectors, and there are very nice packages in that field also. So why do you want to become an AFO only? Why not doing MBA like your brother does? Ma'am, first of all, I'm not interested in MBA. Also, my parents cannot offer me post graduation also, and I want to secure a job which where I can grow myself and grow my career also. Okay, all right. So if you are posted to a very remote location, and you have to manage everything by yourself, girls have additional responsibilities also, like you have to, like you said, that you have a brother also, he's doing MBA. I think he's also not staying with the parents, so you will have to worry about the parents as well. You have to cook all alone, you have to manage to go to the bank and then come back. How will you manage all the stress that is coming up being a girl? Ma'am, I completed my graduation in Coimbatore, which was far away from Madurai. I stayed in hostel for 4 years and I managed everything. And after that, after completing my graduation, I went to North for 3 months. That was my first trip to North, and I managed everything. And I meshed with people also. So it won't be a problem for me to adapt to the other location. And also for considering family's health and management. There are many relatives around here, so I can communicate with them. I can make sure my parents are safe. Okay, all right, very beautiful. So, Parmeshwari, like you mentioned that you have been staying in the hostels and everything. So, if when you were staying in the hostel, you might have met with multiple people in a hostel. People of various regions come and you have to interact with them, right? So, let's consider this same situation in a bank. You are there and you have different colleagues. If they are from different regions, you might have a few mismatch of the thoughts or views, you can say. So, if you have a slight conflict with any of your colleagues, how will you manage that situation where he is or she is not considering you at a right point, and you know you are right, but how will you convey that to them, and they are not listening to you? How will you manage the situation? Ma'am, I do meditation every day, which give me a calm mind in every situation. So I will try to find out the reason and reason behind that fight. I will try to talk about that with the other person, and I try to conclude some solution which is good for both of them. And if it is not possible, then I will try to please them by like accepting. I accept my uh, wrong, so we can stay friendly like that. Okay. But if you know you are not wrong, then also you will say sorry or say that No, you are ma'am, wrong. no, ma'am. If I were not wrong, I don't do that, ma'am. I will Okay, all try right. to converse her. If she were not convinced, then I don't talk to her, ma'am. Okay. There's a scheme of the government related to agriculture. Can you explain that scheme to me? Which part, ma'am? General Sorry. agriculture. No, sorry. My mistake. About irrigation, not agriculture. It was a slip of my tongue about Uh, irrigation. Pradhan Mantri Sinchay Yojana, ma'am. Kishan Sinchay Yojana. It's about irrigation. To promote irrigation in rural areas, where unirrigated areas, like micro irrigation and sprinkler drip irrigation, etc., and also promote watershed management there. Okay, what do you understand by watershed? Watershed is the geographical area where the rainwaters drain and goes into the common drainage placement, like rivers, lakes, and check dams, etc. Okay. So why do you think the government is promoting so much to conserve watersheds or to promote watersheds? Why so? Because water is the most important thing in the world,
and it is very important to agriculture also. We have to use that in a sustainable manner. So government giving many schemes for watershed, and we have to use precisely, because nowadays we don't have water. Then in future we never gonna have water if we not using water now in a sustainable manner. So government bringing many schemes. Okay. Have you heard about Mission for Integrated Development of Horticulture? Yes, ma'am. Okay, what is that? No, I heard about it. I didn't know that much about it. Okay, all right, no problem. And PM Kisan scheme, Yes, ma'am. what PM is it? Kisan is the financial support scheme for farmers. It gives 6,000 rupees in 3 installments per year, ma'am. Okay, all right. And recently there was a scheme launched. It was not recently launched, it was launched long before, but recently some changes are being done in that. And the name is Manrega. Are you aware about the changes that are being done? Yes, ma'am. Its name is changed to Vishit Bharat Guarantee for Rozgar and uh, Ajivana's mission. And the 100 days time period is changed to 125 days. And also, it introduced planned projects for 4 core areas like water management, um, infrastructure for rural and livelihood, and climate resilience. Okay. Parmeshwari, it was very wonderful. The way you answered the general questions, they were very wonderful. Just when is your interview actually? 27th month. 27th. So you have a lot of time. Focus on the schemes like integrated development of horticulture. It is an old scheme. It is not a recent scheme. So you need to know about that because these are some of the basic schemes of agriculture. So focus on the schemes. The general questions that you are answering them very well. So that means you correctly use your presence of mind every place. So that is not a problem. Just focus on the general schemes. You have to study them because 27th is your interview. There's a lot of time. You can give time to that. And even if you give 2 complete days to only the schemes, your schemes will be ready. So you just have to focus on the schemes. Okay. Actually, I have some doubts. Yeah, yeah, sure. Go ahead. Ma'am, I mentioned Hindi speaking in application, but I can't speak that much Hindi, ma'am. I can understand well and I can speak moderately. Is that okay? Or they would reduce mark in it? No, 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 that is not a problem. The only thing is that you should know at least basic Hindi. Like you said that you can understand Hindi very well. You can understand that. Like I am saying कि परमेश्वरी आप कल क्या करोगे? So you can understand that, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, so that is not a problem. Don't worry about that. Just don't worry about that. It has nothing to do with your interview. Okay. Ma'am, and also I was self-employed as I was doing some hand embroidery things in my free times along with my preparation. Can I mention it? Yeah, yeah, yeah. That is a very beautiful thing. If you want to mention, I would recommend that you should mention what impact does this make is what I will tell you. When you will tell them that with the studies I was doing that, and you can, if it was possible, then you can add this that you were doing this to support your family financially because you have the responsibility. You and your brother are the only two siblings of your parents, and you have to take care of them. So just I wanted to do something till I completed my studies. I wanted to do something to support my family. That is what I was doing. That is why I was doing it. So it will have an advantageous impact on your interview. Like you think about your family and you have a corner for them. Obviously everyone has, but this you can add. Yes. According to me, Okay. you should add that. Okay. Thank you, ma'am. Okay. All right. Okay. Uh, Rituparna, are you there? Yes, ma'am. Okay. All right. गुड मॉर्निंग Uh, मैम। good morning. How are you? मैम थोड़ा सा नर्वस हूँ, ये मेरा फर्स्ट मॉक इंटरव्यू है इसलिए। ओके कोई बात नहीं नर्वस होने की जरूरत नहीं है जस्ट काम योरसेल्फ रिलैक्स रहो और अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करो यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम ऋतुपर्णा राउत। आई बिलोंग टू ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। I have completed my graduation in BSc Honors Horticulture from OUAT Chiplima.
एंड मुझे मैम ज़्यादा फ्री टाइम नहीं मिलता है, पर जब भी फ्री टाइम मिलता है तो मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है और उससे मैं बहुत रिलैक्स्ड फील भी करती हूँ। और टॉकिंग अबाउट माय फैमिली, मेरे फैमिली में मैं और मेरे माता पिता रहते हैं। ओके, तो क्या आप ओनली चाइल्ड है ऋतुपर्णा? यस मैम। ओके, तो अगर आपको एक ऐसी जगह पोस्टिंग मिल जाती है जहां आप अपने फैमिली के साथ नहीं रह पाते हैं, तो आपको उनकी चिंता होगी, आप कैसे मैनेज करेंगी? आप बार बार जा भी नहीं सकती हैं। यस मैम। मैम एक्चुअली मैं अभी 22 ईयर्स की हूँ और मतलब मैं 11 साल अपने मम्मी पापा से दूर ही रही हूँ। मैं 6th क्लास से नवोदय नवोदय में पढ़ती थी और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन भी यहाँ से दूर हुआ है। तो मैम ऑलरेडी मैं इस चीज़ से थोड़ा सा हैबिचुएटेड हूँ। और उनकी बात करूँ, पेरेंट्स की बात करूँ, तो उनके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं जहाँ भी रहूँगी उनसे वो कांटेक्ट, क्योंकि अभी डिजिटल टाइम आ गया है, तो हम फ़ोन में कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और फ़ोन के द्वारा मैं उनका प्रॉब्लम भी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी मतलब सॉल्व कर सकती हूँ। उनको कुछ चाहिए तो मैं उनके लिए मंगवा भी सकती हूँ। और मैम मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगी या उनको मेरे पास बुलाकर उनका भी माइंड फ्रेश करने की कोशिश करूँगी। ओके। ओके ऋतुपर्णा, आपने एफपीओस के बारे में सुना है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन? यस मैम। ओके, तो उसमें और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मल ग्रुप है और एसएचजी को हम बेसिकली इनफॉर्मल ग्रुप कह सकते हैं, क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर होना पड़ता है, वो मैंडेटरी है। लेकिन एसएचजी ग्रुप एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो कि बेसिकली ज्यादातर महिलाएं इनमें इनमें महिलाओं का एक ग्रुप बनता है और वो अपना उनका सोशल बैकग्राउंड भी सेम होता है और फिर वो अपने अपने सोशल स्टेटस को और थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे काम मिलकर करते हैं। और लेकिन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में वो जनरली वो रजिस्टर्ड होता है और उसमें बहुत सारे फार्मर्स मिलकर एक ग्रुप बनाकर उनको उनका रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद अगर उन्हें कुछ लोन या कुछ फर्टिलाइजर सीड वगैरह चाहिए तो उसके लिए वो एक ग्रुप में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजकर फिर उसके द्वारा वो ला सकते हैं। ऑलराइट, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, सो ऋतु, आरटीजीएस और एनईएफटी, ये दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है? मैम आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, जिसमें मतलब जो कि आरटीजीएस मैम हाई वैल्यू ट्रांसफर के लिए यूज होता है। और वो आरटीजीएस मतलब मैम जिस टाइम में होता है जिस टाइम में हम भेजते हैं उसी टाइम वो पहुंच जाएगा। और नेफ्ट में वो बैच प्रोसेसिंग होता है जिसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। वो हाफ आवरली होता है और 48 बैचेस में होता है, जिसमें अगर मैं 11/1 में अगर मैं कुछ कर रही हूँ ट्रांसफर, तो वो 11:30 तक जाएगा। तो 11:19 में भी अगर कोई कर रहा है तो भी वो 11:30 में ही पहुंचेगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और आरटीजीएस में वो तुरंत ही पहुंच जाता है। ओके ऋतु, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी एक स्ट्रेंथ है और ऐसी कौन सी एक वीकनेस है, तो आप अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगी? मैम स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो मैं बहुत ही कंसिस्टेंट रहती हूँ। मैं जब से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है उसके बाद से भी मैंने आने के बाद मेरा स्केड्यूल बनाया पढ़ने के लिए, एफओ के लिए भी। और उसको फॉलो करके मैं हर दिन, मतलब मेरा एक स्केड्यूल था कि हर दिन मुझे 12 घंटे पढ़ना ही है। तो उसको मैं मेंटेन करती थी, ब्रेक्स लेती थी लेकिन जितना पढ़ना है उसको कंप्लीट करती थी। तो वो मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं कंसिस्टेंटली काम कर सकती हूँ। और वीकनेस मैम, आज सच वीकनेस, मेरा एक वीकनेस मैं यही बोलूंगी कि मैं किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ सकती। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये कंप्लीट ही करना है। तो उस चक्कर में कभी कभी फैमिली भी बोलते हैं कि तुम इतना काम में घुस जाती हो कि हमें थोड़ा सा टाइम भी नहीं देती। तो वो मुझे लगता है मेरा वीकनेस है। ओके, ऑलराइट। मत्स्य संपदा योजना से आप क्या समझती हैं? मैम अभी थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। मैं पढ़ी थी लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके, कोई बात नहीं। आपने बचपन से अपने सराउंडिंग्स में ऐसी कौन सी क्रॉप्स ग्रोइंग करती हुई देखी हैं, एंड वो कौन सी क्रॉप्स थी, और उनकी क्या क्या वैरायटीज हो सकती हैं? जो दो स्पेसिफिक वैरायटीज, आप कोई भी वो मुझे बताइए अपने सराउंडिंग्स में जो आपने देखी हो। मैम मेरे सराउंडिंग में तो मैक्सिमम पैडी होती है
पैडी मतलब बचपन से मैं जब भी जहाँ जाती हूँ पैडी तो रहता ही है, क्योंकि वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। और पैडी का मैम वैरायटी यहाँ पे हमारी जगह पूजा और स्वर्ण साबुआन ज्यादातर ग्रो करते हैं लोग। जब मेरे रावे के टाइम में भी मैं फार्मर से इंटरेक्ट करती थी तो उन्होंने मैक्सिमम पूजा और स्वर्ण साबुआन ही बोला है। और ओके। उसके अलावा मैम यहाँ पे मैंगो भी होता है, और मैंगो मैंगो का हमारे रीजन में आम्रपल्ली वैरायटी इज वेरी फेमस। और आम्रपल्ली के अलावा तोतापुरी और लांगरा भी दिखाई देती है। और उसके साथ मैम कैश्यू कैश्यू मेरे अपने लोकल एरिया में, मैं यहाँ से मतलब हमारे यहाँ से 500 मीटर डिस्टेंस में भी कैश्यू का एक बहुत बड़ा फील्ड भी है। और कैश्यू के वैरायटी यहाँ पे जनरली मैम धन्ना धन्ना ज्यादातर दिखाई देता है। ओके। ओके रितु, आपने बोला कि आपके एरिया में ज्यादातर पैडी ग्रो करता है, करेक्ट? और आपने वैरायटी भी बताई बताई उसकी पूजा। तो वो वैरायटी जो है वो कैसे डिफरेंट है बाकी वैरायटीज से? क्या उसकी कोई स्पेशलिटी है? मैम एक्चुअली स्वर्ण साबुआन का पता है मैम, पूजा का थोड़ा अभी आइडिया नहीं आ रहा है। ओके, तो आपको जिसका पता है आप उसका बता दीजिए। मैम स्वर्ण साबुआन जनरली वो टॉलरेट कर सकता है, सबमर्जेंस टॉलरेट कर सकता है, इसलिए फ्लड प्रोन एरिया में स्वर्ण साबुआन को लगाना बेनिफिशियल होता है। ओके रितु, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने बोला कि आप नर्वस हो, आपका पहला इंटरव्यू है, तो वो आपके आंसर्स में मुझे नहीं दिखा। हाँ, बस एक चीज में मुझे लगा कि आप आंसर करते हुए हिल रहे हो। आपको वहां नहीं हिलना है, यहाँ आप कैमरे के सामने हिल यस रहे हो, मैम। नॉट अ प्रॉब्लम। यस कैमरे मैम। के यस सामने मैम। नहीं हिलना है, वहां पे आपको नहीं हिलना है, कैमरे के सामने हिल रहे हो, नो प्रॉब्लम। बट आप कोशिश करना एकदम स्टेबल रहकर आंसर करो, बस पैनल को आपको देखना है, रनिंग आइज से हिलना नहीं है आपको। यस। सेकेंडली, आपके आंसर्स से मुझे नहीं लगा कि आप नर्वस थे, आपने अच्छे से आंसर किए। और स्कीम भी मुझे पता है आपको पता होगी मत्स्य संपदा, बट आप थोड़े से नर्वस थे, यस आपने मैम। जो बोला इस वजह से आप भूल गए, वरना आपने तो आपने पढ़ा है, आई कैन सी। यस मैम। एंड सेकेंडली, रितु, आप अगर कोई वैरायटी बोल रहे हो ना उनके सामने कि हमारे एरिया में ये वैरायटीज ग्रो होती हैं, तो उसका वैरायटी का नाम आप तभी लेना जब आपको उसके बारे में कुछ पता हो, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चन हो यस सकता है आपसे। यस तो मैम। आपको, जैसे मैंने पूजा वैरायटी पूछी, आप उसके बारे में पढ़ लेना, सिर्फ उसकी स्पेशलिटी पढ़ लेना। उसमें बहुत ज्यादा पढ़ने यस की मैम। जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन, दैट दिस हैज दिस स्पेशलिटी, और ये इस तरीके से डिफरेंट है बाकी से, दैट्स ऑल। बाकी आप में जो भी क्वेश्चंस थे उसके आंसर बहुत ब्यूटीफुली किए। कॉन्फिडेंस मुझे नहीं लगा कि आप में कम था, बिल्कुल भी नहीं लगा। नर्वस भी आप आंसर से नहीं लगे हो, बट आप भूल गए थे तो तब मुझे समझ में आ गया, बट आपके आंसर से यस नहीं मैम। लगा। और आप एक कांस्टेंट स्माइलिंग फेस के साथ आंसर दे रहे थे, दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। यस मैम। मैम वो मैम वेराइटीज जो मैं बोलूंगी वो वही पूछेंगे, या वो अलग कुछ वैरायटी भी पूछ सकते हैं? मतलब सारे वेराइटीज पढ़ना जरूरी है अपने नहीं लोकेलिटी नहीं, के? देखो, अगर वो आपसे आपकी लोकेलिटी के पूछ रहे हैं तो जो आप बोलोगे वो आपसे वही पूछेंगे। सेकेंडली, अगर यस मैम। वो कोई पूछ सकते हैं ना, तो जो राइस की एकदम फेमस वैरायटीज होती हैं, जैसे कि आईआर8 हो गई, TN1 हो गई, जलमग्न हो गई, ठीक है, लूनीश्री यस हो मैम। गई, तो वो आपसे अगर पूछेंगे तो वो फेमस ही पूछेंगे आपसे, वो एकदम डेप्थ में नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आपकी लोकेलिटी की वो पूछ रहे हैं तो वो वही पूछेंगे जो आप उन्हें बताओगे, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता ना, वो लोकेलिटी में आप रहते हो, उन्हें नहीं पता कि आपकी लोकेलिटी में कौन सी यस वैरायटी मैम। है। तो वो जो आप यस मैम। बोलोगे वो वही पूछेंगे आपसे। ओके मैम। और मैम स्कीम्स ज्यादातर मतलब कौन से रिलेटेड स्कीम्स ज्यादातर पूछ सकते हैं? मैम ज्यादातर, एक्चुअली बहुत सारे स्कीम्स है तो सारा पढ़ना जरूरी है या नहीं क्या नहीं, ही देखो, मैम? सारी स्कीम्स नहीं, बस जो एग्रीकल्चर या फिर रूरल डेवलपमेंट से लिंक्ड है, एग्रीकल्चर से जो मेन मेन होती हैं, लाइक आपकी सम्मान निधि हो गई, मत्स्य हो गई, मानधन हो गई, एंड हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर मिशन हो गया, एंड इरिगेशन से रिलेटेड हो गई, सिंचाई योजना हो गई, माइक्रो इरिगेशन हो गया, और रूरल डेवलपमेंट से जितनी भी हैं, लाइक आपकी वो हो गई, कुसुम योजना हो गई, वो अभी अभी आई है, ड्रोन स्कीम हो गई, ये कुछ हैं जो रूरल डेवलपमेंट में चलती हैं, और कुछ हैं जो एग्रीकल्चर में चलती हैं। ये बेसिक पढ़नी है। जो एकदम छोटी छोटी हैं वो मत पढ़िए, दैट इज नॉट एन इशू। आप मेजर मेजर पढ़ लीजिए, आपको आइडिया यस होना मैम। चाहिए कि किस और लिए मैम होती है। मेरे जी मैम। हम्म। मैम मेरे आंसर्स थोड़ा ओवर एक्सप्लेन लग रहे थे या ठीक थे? नहीं नहीं, सही थे, ऑन पॉइंट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ही आपसे डिटेल में पूछा था तो आप डिटेल में आंसर कर रहे थे, दैट इज फाइन।
अगर वो आपसे सिर्फ ये पूछे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये पूछूं कि केसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सिर्फ फुल फॉर्म बताना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि केसीसी क्या होता है, तो आप एक्सप्लेन करना। तो वो आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा कि वो पूछ क्या रहे हैं। तो आपके आंसर्स एक्सप्लेन थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैम। और मैम मैंने जैसे बताया कि मेरा हॉबी कुकिंग है, तो कुकिंग से रिलेटेड मैम ऐसे कुछ डीप क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं जो वो पूछ सकते हैं? देखो, पहली बात तो जब आप वहां जाओगे ना, और जो वो आपसे पूछेंगे, जैसे कि आपने बोला कि कुकिंग की मुझे पसंद है कुकिंग, तो वो ना एक बहुत, आज जब आप जाओगे, आपका पहला इंटरव्यू है, आप फ्रेशर हो। यस मैम। तभी। तो जब आप जाओगे ना, तो एकदम आपसे बिल्कुल जॉली होकर पूछते हैं कि अच्छा, आपको कुकिंग पसंद है, तो आप खाने में क्या क्या बना लेते हो। वो ऐसे आपसे सवाल करेंगे, आपसे कुछ डीप में नहीं पूछेंगे कि आप कितना ऑयल डालते हो या क्या बनाते हो। ऐसे वो आपसे ऐसे पूछेंगे, अच्छा, ओके। आपको खाना बनाने का शौक है, तो आप क्या बना लेते हो। लाइक, तो आप बोल देना फॉर एग्जाम्पल, आप बैंगन बना लेते हो, आप ब्रिंजल बना लेते हो, तो आप बोल देना कि सर, मैं बैंगन की सब्जी अच्छी बनाती हूँ, और मुझे ये बनाने का शौक है। उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे वो। ओके मैम। ऑलराइट, थैंक यू रितु, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। अब आशीष। थैंक आशीष, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आपका शायद ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। आवाज नहीं आ रही आपकी। Am I audible? हाँ हाँ, अब आप ऑडिबल हो। ओके। मैं ऑडिबल हूँ आपको? क्लियरली ऑडिबल हूँ? आशीष, आप एक मिनट कुछ बोलना, आपकी शायद फिर से आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं आशीष, आपकी आवाज नहीं आ रही। यू आर नॉट ऑडिबल Am I आशीष। audible? हाँ, अब हो। Am I बीच audible बीच now? में। हाँ हाँ हाँ, अब कंप्लीटली हो। ओके। Thank you. ओके आशीष, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। Yes. Good morning, ma'am. Ma'am, I am Ashish Yeshudas Kundravar. I come from Taluka Ballarpur, district Chandrapur. I did my graduation from Anand Niketan College of Agriculture, Varora, which is also comes in Chandrapur district only. And after that, I did my post graduation from in Department of Agriculture Economics from Postgraduate Institute, which is affiliated to Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapit Akola. And my hobbies are just watching movies. ओके आशीष, आपने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप फर्दर स्टडीज के लिए क्यों नहीं गए, लाइक फॉर पीएचडी? और इकोनॉमिक्स से तो काफी सारी फील्ड्स ओपन हो जाती हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री इकोनॉमी। ठीक है, तो फिर Yes, आप ma'am. फर्दर स्टडीज के लिए क्यों नहीं गए? व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एएफओ? मैम ऐसा कुछ प्लान नहीं था मैम, पर जैसे ग्रेजुएशन हो गया है मैम, तो एक कॉम्पिटिटिव मतलब फॉर्म कॉम्पिटिटिव एक एनवायरनमेंट के लिए मैम मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया था। और मेरे को एक कॉम्पिटिटिव फॉर्म का एनवायरनमेंट चाहता है जहाँ पे स्टडीज वगैरह कर सकते कॉम्पिटिटिव के लिए। तो मैम और सीनियर्स भी इसमें मुझे बहुत हेल्प किए थे कि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो हमारी है अकोला में, वहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है जहाँ पे सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं। तो मैम उसके लिए मैंने एमएससी करी थी। ऐसा कोई प्लान नहीं था कि पीएचडी वीएचडी करना है, एमएससी करना है करके। ओके। तो आप में ऐसी क्या क्वालिटीज हैं आशीष, जो आपको लगता है कि सूटेबल हो सकती है कि एएफओ के रोल के लिए? मैम पहले तो मैम मैं थोड़ा कंसिस्टेंट हूँ कामों में। दूसरा मैम मैं थोड़ा एडेप्टेबल पर्सन हूँ, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मतलब मैं एनवायरनमेंट में मतलब एडजस्ट हो जाता हूँ मैम। और मैम और बोल सकता हूँ मैम कि थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन हूँ और कम्युनिकेशन अच्छी है मैम थोड़ा। ओके करेक्ट। आशीष, आपने बोला कि आप सॉफ्ट स्पोकन हैं। एक सिचुएशन मान लेते हैं कि कल को कोई फार्मर आपके पास आता है। होता है, कई लोग अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से बात करते हैं। वो किसी वजह से बहुत ज्यादा रेज में है, वो गुस्से में है, तो वो आपसे शाउट करके बात कर रहा है, उसने मैनेजर पे भी चिल्लाया, वो बाकी सब पे चिल्ला रहा है। तो आपने कहा आप सॉफ्ट स्पोकन है, तब आप कैसे हैंडल करेंगे? क्या तब भी आप सॉफ्ट रहेंगे? आप उसको समझाएंगे कैसे? वो सुनने को नहीं तैयार है किसी के भी। मैम तो पहले तो मैं उनको जो उनकी प्रॉब्लम है पहले मैं समझूंगा। उसके बाद मैम मैं थोड़ा उनको समझाऊंगा, कन्विंस करूंगा कि सर सुनिए करके।
और मैम अगर फिर भी नहीं सुन रहे तो फिर मैं बैंक मैनेजर हो या जो बैंक के रूल्स एंड जो रेगुलेशंस है या जो प्रोसीजर्स है मैं फॉलो करूंगा और उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा मैम कि प्लीज थोड़ा प्रॉब्लम को समझिए और थोड़ा मतलब सॉफ्टली और पेशेंटली बात करिए कि मैं आपके प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ करके। ओके आशीष, किसान क्रेडिट कार्ड से आप क्या समझते हैं और रिसेंट में क्या उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं? यस मैम। मैम किसान क्रेडिट कार्ड इस केसीसी इस किसान स्टैंड्स फॉर किसान क्रेडिट कार्ड। सर मैम ये एक स्कीम है गवर्नमेंट द्वारा जो माइक्रो फाइनेंस या शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जाते हैं फार्मर्स के लिए। और मैम अभी जो प्रेजेंटली इसमें जो चेंज हुआ है मैम, इसकी जो लिमिट है मैम वो बढ़ चुकी है। पहले 3 लाख थी मैम, अभी ये 5 लाख है। ओके ऑलराइट। तो इसमें कोलेटरल फ्री लोन जो होता है वो कितनी रेंज तक मिलता है, कितनी लिमिट तक मिलता है? मैम पता नहीं, पर मैम क्या मैं गेस ले सकता हूँ थोड़ा? हाँ हाँ मैम बिल्कुल। ये 3 लाख या 2 to 3 लाख से लग मैम, इसमें हम कोलेटरल फी ले सकते हैं शायद। थोड़ा ओके मैं ऑलराइट। कंफर्म हूँ इसके बारे में। ओके कोई बात नहीं। आशीष, अगर कोई फार्मर आपके पास आता है या फिर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा फार्मर है जिसको अपनी इनकम इंक्रीज करनी है, अभी वो सिर्फ क्रॉप्स ग्रो करता है और उसको सेल करके जो भी उसके पास इनकम आती है उससे आती है, उसके पास कोई और सोर्सेज नहीं है इनकम का, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अपनी इनकम डाइवर्सिफाई करे? ऐसे क्या तरीके आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं? यस मैम। मैम मोस्टली सारे फार्मर्स तो मेन क्रॉप्स में मतलब जो जो जिसकी मार्केट प्राइस ज्यादा अच्छी है तो वही क्रॉप्स ग्रो करते हैं। पर मैम मैं उनको ये भी समझा सकता हूँ मैम कि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग बहुत जरूरी है मैम आज के करंट सिचुएशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। मैम हम अलाइड सेक्टर भी हम फॉलो कर सकते हैं। अलाइड सेक्टर में जैसे पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, और मैम फिशरीज हो गए, मतलब बहुत सारे अलाइड सेक्टर जिसमें हम इनकम बढ़ा सकते हैं फार्मर्स की। और मैम ये और भी हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि अगर हम क्या बोलते हैं बैंक में ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है मैम। ये इट्स लाइक एसेट टू देम। ये लोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं उनके, मतलब जिसके कारण बैंक भी की इनकम और इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं मैम ऐसा। ओके आशीष, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूपीआई? यूपीआई क्या होती है? मैम यूनिफाइड पेमेंट मैम इंटरफेस सॉरी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मैम। ये एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें हम पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं मैम, डिजिटली मैम, जिसके मतलब कितना भी अमाउंट हम ऑनलाइन द्वारा किसी को भी भेज सकते हैं, अदर पर्सन के लिए। ओके, और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट से आप क्या समझते हैं? मैम कॉन्टैक्टलेस मैम कंफर्म नहीं हूँ उसके बारे में मैम, पर विदाउट हम फिजिकल कोई टच किए मैम, शायद एटीएम हो या जो भी मैम, उसको हम विदाउट फिजिकल कांटेक्ट वी कैन सेंड द मनी टू देम, अदर पीपल। ओके आशीष, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फसल बीमा योजना? मैम फसल बीमा योजना इज अ वेदर बेस्ड स्कीम regulated by the government of India। मैम ये एक इसमें मैम वेदर से रिलेटेड जो इश्यूज है, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गया या कोई भी मैम, एग्जैक्टली मैं उसको फॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ पर जैसे हेल स्टॉर्म्स हो गए या पेस्ट एंड डिजीज अटैक्स होते हैं या हम्म, मैम कोई क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण जो ईल्ड लॉस होता है मैम, फसल लॉस होती है मैम, उसके लिए होता है वेदर फसल बीमा योजना। इसमें इसमें मैम प्रीमियम खरीफ, परसेंटेज रबी का? और हॉर्टिकल्चर का। यस मैम, खरीफ के लिए मैम 2% होता है, रबी के लिए मैम 1.5% होता है, एंड हॉर्टिकल्चर के लिए मैम 5% होता है मैम, कमर्शियल के लिए, हॉर्टिकल्चर एंड कमर्शियल कल्टीवेशन के ओके आशीष, आप आंसर सारे सही से कर रहे हो, बट कुछ चीजें हैं जो मैं आपको पॉइंट आउट करूंगी, तो आप अपना आंसर उसको रिफ्रेम करना। जैसे कि मैंने आपसे यूपीआई कहा था, तो आपने कहा कि यूपीआई लिए। से हम एक कितना भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कितना भी टर्म मत बोलेगा, क्योंकि हर चीज के लिए अलग अलग लिमिट है यूपीआई में। लाइक पर्सन टू पर्सन अलग है, अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो वो अलग है। तो आप ये कितना भी जो टर्म है यस ये हटा दीजिएगा। आप ये बोलिएगा बस यूपीआई एक यस प्लेटफॉर्म है जिससे हम पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू बिजनेस या कोई भी एक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं।
दूसरा कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। ओके मैम, यस आप मैम। बोल सही रहे थे बट शायद आपको डाउट था या कुछ भी था तो आपने नहीं दिया उसका आंसर, बट आप सही आंसर कर रहे थे। विदाउट एनी फिजिकल टच जो भी ऑनलाइन पेमेंट होता है वो सारे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में आते हैं। आप सही बोल रहे यस मैम, थे। ओके मैम। ओके, ठीक है। और अभी क्या पूछा था मैंने आपसे? हाँ, फसल बीमा योजना। तो आपने, आपको प्रीमियम भी सारे उसमें पता थे, आपने सही बताया। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन भी सही दी, स्टार्टिंग आपने सही किया कि वो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस होती है। बट आपने जो बीच में एक्सप्लेनेशन दिया ना जिसमें आप अटक गए, आप वो नहीं देते तो भी चलता। जब उन्होंने आपसे इंश्योरेंस स्कीम पूछी है तो बस आप ये बता दीजिए कि वो फार्मर को क्रॉप फेलियर के लिए या कोई भी जो आपने बताया पेस्ट डिजीज अटैक जो भी चीजें हैं उसके थ्रू यस जो मैम। भी इंश्योरेंस होता है रेलेवेंट वो प्रोवाइड करती है, और प्रीमियम इसका ये होता है, दैट्स ऑल। आप अगर खुद में एक्सप्लेन करोगे तो आप खुद में ही कंफ्यूज हो जाओगे, और आपको आंसर्स आते यस हैं बट आप सोचते हो कि आप गलत ना बोलते इसलिए आप रुक जाते हो। जैसे कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आपको आता था बट आप रुक गए। तो आप ये मत सोचो कि आप गलत बोल रहे हो, आप थोड़ा सा नर्वस हो। आप, आपका इंटरव्यू कब है आशीष? मैम, इट्स 26 मैम। 26? हाँ, तो अभी यू स्टिल हैव 3 to 4 days। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करो आशीष। आपको स्कीम्स सब आती हैं, आपको सारी चीजें पता है, बट आप थोड़ा सा नर्वस हो इस वजह से आप भूल जाते हो। आपको नॉलेज है बट आप भूल जा रहे हो। तो आपको वो प्रैक्टिस सही आएगा, बाकी सारी चीजें आपकी सही थी। बस आप ये कॉन्फिडेंस रखो कि आप जो आंसर दे रहे हो वो आप सही आंसर दे रहे हो। और छोटा ओके मैम, आंसर यस दोगे तो भी चलेगा, आप छोटा आंसर दो, चलेगा। मैम। बट आप यस सही मैम। आंसर दे रहे हो, खुद में कॉन्फिडेंस रखो। यस मैम, ये पहला इंटरव्यू मैम, थोड़ा डर लग रहा था। कोई बात नहीं, वो समझ में मैं समझ पा रही थी। बट कोई बात नहीं, आप आंसर सही दे रहे थे। आप उसी डर की वजह से आपने 2 3 आंसर नहीं दिए, बट आप आंसर सही दे रहे थे। अगर आप देते तो आंसर सही देते आप। यस मैम। मैम, एक डाउट था मैम। हम्म मैम, मैम, एमएससी के बाद मैम थोड़ा गैप आ गया मैम, तो उसका हम्म। अगर वो काउंट क्वेश्चन करेंगे तो मैम उसका आंसर कैसे देना है मैम? आपने कब किया था एमएससी? मैम, इट्स मैम इन ईयर 2022। 2022? तो ज्यादा गैप नहीं है। आप ये कह सकते हो कि सर आई वॉज प्रिपेयरिंग, मैं एएफओ के लिए ही प्रिपेयर कर रहा था। और इन केस अगर वो बोलते हैं कि तब तक आपका कहाँ लैग बिहाइंड कर रहा था, मतलब आपका प्री निकला मेंस निकला, क्योंकि कभी स्टूडेंट से ऐसे भी क्वेश्चन हुए हैं कि यस मैम। अगर आपने 3 साल से एएफओ दिया तो आपका क्या प्री ही नहीं निकला था, या फिर क्या मेंस निकला, क्या इंटरव्यू निकला? तो देखो, आप वहाँ ये बोल सकते हो कि सर जैसे कि आपका प्री अगर निकला हो तो आप बोल सकते हो सर मैंने थोड़ा बहुत मेंस में कम मार्क्स रह जाते थे, और बाकी यस मैं मैम। अपने ऊपर अपने स्किल्स पे भी वर्क कर रहा था साइड बाय साइड, और मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था क्योंकि मेरा प्राइमरी फोकस था एक बैंकर बनना, एक एएफओ बनना। और इसी वजह से मैंने इस पाथ पे स्टिक किया कि मुझे पता है मेरी कंसिस्टेंसी एक ना एक दिन मुझे एक अच्छी पोजीशन पर ले जाएगी। इस वजह से मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस चीज की, और मैंने छोड़ी नहीं, इस वजह से ये गैप हो गया बस। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, ऑलराइट। ओके, माधुरी। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। माधुरी, आपकी आवाज ब्रेक हो गुड रही है बीच मॉर्निंग। बीच में। गुड मॉर्निंग मैम, हेलो। हाँ, आप ऑडिबल है। ओके माधुरी, वेरी गुड मॉर्निंग। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good morning, ma'am. My name is Madhuri Gankraine. I am from Balaghat, Madhya Pradesh. I have completed my graduation in agriculture from College of Agriculture, Balaghat. Then I have completed my post-graduation in genetics and plant breeding from Banaras Hindu University. Including me, I have 6 members in my family. My father is a farmer and my mother is a homemaker, and we are 4 siblings. I am the eldest one. As per my hobbies goes, I like traveling and cooking. Thank you so much, ma'am. ओके माधुरी, लाइक यू सेड कि आपने जीपीबी में मास्टर्स किया है, तो जीपीबी एक मेजर सब्जेक्ट माना जाता है, आपको पता होगा। तो आप रिसर्च में क्यों नहीं जाती? प्लांट ब्रीडिंग में तो रिसर्च में इतना स्कोप है, रिसर्च में है, पीएचडी में है, तो व्हाई डोंट यू गो फॉर हायर स्टडीज? मैम, मैंने अपने इंटरेस्ट के लिए ही मास्टर्स जेनेटिक्स से किया था। बट मैम कुछ मतलब क्योंकि मैं एल्डेस्ट हूँ अपने घर में, तो मुझे अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी थी, तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और मैम मुझे रिसर्च में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे हायर एजुकेशन में मास्टर्स ही करना था, इसलिए मैंने वो प्रेफर किया। ओके, तो लाइक आपने बोला कि आपको अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है,
तो अगर आप काफी दूर उनसे पोस्टेड हो जाएंगे तब आप कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे? बिकॉज आप उनसे डेली नहीं मिल सकते, डेली नहीं देख सकते, बात कर सकते हो आप, बट स्टिल डेली विजिट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। तो आप कैसे मैनेज करेंगे? यस मैम। मैम क्योंकि मैम जो हमारा घर है वो काफ़ी रूरल एरिया में है, तो मुझे अपनी स्कूलिंग के लिए भी घर से बाहर रहना पड़ा है। मैं 8th क्लास से ही बाहर रह रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं मम्मी पापा की हेल्प अभी तक के वैसे भी मैं कर रही थी, उनसे मिलते आ रही थी जब भी मुझे टाइम मिलता था, एजुकेशन के टाइम पे भी। तो मैम मैं जॉब के टाइम पे भी पूरा टाइम निकालूंगी कि मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकूं। और अगर मैं नहीं कर पाई तो मैम मेरे भाई बहन है जो कि मेरे पेरेंट्स की मतलब मदद कर सकते हैं यहाँ पर। और मैं दूर रह के भी जो उनके लिए कर पाऊंगी मैम, मैं वो करने की कोशिश करूंगी। ओके, ऑल राइट। माधुरी, कोई अभी रिसेंट में सोलर एनर्जी से या फिर फार्मर्स के सोलर प्लांट सेटअप करने के लिए कोई स्कीम आई थी क्या? मैम पीएम कुसुम 2019 में आई थी मैम। उसके बारे में बताइए। मैम पीएम कुसुम मैम पीएम कुसुम जो है किसान ऊर्जा सुरक्षण एवं उत्थान योजना, इसका फुल फॉर्म है मैम। इसमें सब्सिडी दिया जाता है जिसमें कि इरिगेशन पंप सेट्स के लिए दिया जाता है 60% सब्सिडी दिया जाता है। एंड अगर वो लोन ले रहा है तो उनको 30% तक की हेल्प की जाती है। इसमें मैम ये इंश्योर करते हैं कि जो डीजल से जो पंप्स लगाते हैं उनको हम रिप्लेस कर सके सोलर पंप से, जिससे कि जो इको फ्रेंडली इरिगेशन प्रोवाइड कर सके। एंड मैम इससे क्या होता है कि ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिससे कि जो फार्मर्स है वो गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी बेच भी सकते हैं, जिससे कि उनको इनकम भी मिलते रहेगी। तो इसलिए मैम ये हेल्प करती है कुसुम फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए भी और इको फ्रेंडली भी। ओके माधुरी, लाइक आप सपोजिडली एक सिचुएशन देती हूँ कि आप एक ऐसे एरिया में पोस्टेड हैं जो रूरल है। आप ऑलरेडी आपने बताया कि रिमोट लोकेशन रूरल एरिया में ही आपका जो ग्रोइंग अप हुआ है आपका वहीं हुआ है। तो आपको पता है कि वहां पे कैसे रहा जाता है, कैसे क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, यू हैव एवरीथिंग राइट। लेकिन इन केस आप जब एक एएफओ हैं तो आपको एक रूरल एरिया में जाना होता है जहाँ की बैक हिस्ट्री कुछ इतनी अच्छी नहीं है सेफ्टी कंसर्न्स को लेके। तो आप अपनी सेफ्टी कैसे एंश्योर करेंगी बीइंग अ फीमेल? मैम बीइंग एन फीमेल मैम, क्योंकि मैं बाहर भी अकेले रही हूँ, तो मैम मैं वहां पर भी जो है मैं सेफली अपने काम करते आई हूँ। तो अगर मेरा ऐसे कोई एरिया में हो जाता है पोस्टिंग जहाँ पे सेफ्टी कंसर्न्स है, तो मैं उसके लिए मैं मतलब कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं सेफ भी रहूं और जो वहाँ का काम है वो भी कर सकूं। ओके, ऑलराइट। अभी मैं इतना ही सोच पा रही हूँ। ओके, ऑलराइट। माधुरी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से आप क्या समझती हैं? मैम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए मैम जो एग्रीकल्चर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट फंड्स रिलीज करती है, जिसमें कि जो मेनली प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया जाता है, फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए उनको हेल्प किया जाता है, जिससे कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके और जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बढ़ सके। क्योंकि कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर है वो उस पे हमारी 60% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट तो है, बट फिर भी जो हमारा मेनली जीडीपी पे जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का होता है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर। तो उस पे फोकस करने के लिए हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड दिया जाता है। ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटलाइजेशन इन एग्रीकल्चर? मैम डिजिटलाइजेशन इन एग्रीकल्चर मैम मीन्स विदाउट एनी पेपर वर्क, और वी कैन मैम हम इजीली जो है ऑनलाइन जो है काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस, ये इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ओके, ऑलराइट। माधुरी, जैसे कि आपने बताया कि आप एमपी में रहती है, मध्य प्रदेश में, एंड मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं। तो लाइक आपने अपने सराउंडिंग्स में या फिर जहाँ भी आपने पढ़ाई कंप्लीट की या फिर अपने जहाँ भी आप रही, जहाँ पे आपका बर्थ हुआ, वहां पे आपने कोई फेमस या फिर कोई भी ऐसी ट्रीज की वैरायटीज देखी, कोई भी ट्री स्पीशीज देखी है? यस मैम, यहाँ पे क्योंकि मैम मेरा जो घर है वो जंगल के पास ही, यहाँ पे फेमस नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क भी है। मैम यहाँ पे सागौन जो टीक प्लांट है मैम उसकी काफी स्पीसीज देखी जाती है। पलास जिसको हम फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं मैम, उसकी भी काफी प्लांट्स यहाँ पे देखे जाते हैं। और मैम नीम जो है वो भी काफी यहाँ पे देखे जाते हैं मैम।
ओके, तो जैसे आपने बताया कि पलाश को हम फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं, तो वाई पलाश को हम फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं? रीजन क्या आपको पता है इसका मैम, रीजन? यस मैम, ड्यूरिंग मार्च और अप्रैल मैम, जब होली का टाइम होता है, तब मैम जिसके फ्लावर्स होते हैं वो ऑरेंज कलर के, तो मैम जब वो ब्लूम करते हैं मैम, तो इट लुक्स लाइक अ फ्लेम, रेड और ऑरेंज फ्लेम, दैट्स व्हाई मैम इसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। ओके माधुरी, आपकी नॉलेज तो बहुत अच्छी है। इन केस आपने एमएससी में जीपीबी किया है, सॉरी एमएससी जीपीबी से किया है, स्टिल आप आपकी जो फॉरेस्ट्री की नॉलेज है वो भी बहुत अच्छी है। मैंने इसीलिए ये फॉरेस्ट्री का क्वेश्चन पूछा था आपको, मतलब वो करने के लिए कि शायद आपको नहीं पता होगा, बट आपने फिर भी उसके आंसर्स बहुत अच्छे से दिए। एक जो आपके फील्ड का क्वेश्चन नहीं है, आपने फॉरेस्ट्री पढ़ा होगा नो डाउट ग्रेजुएशन में, बट स्टिल आपने आंसर उसका बहुत ब्यूटीफुली किया। एंड सेकेंडली, हाँ मैं आपको एक चीज बता रही थी कि जैसे आपने जब आंसर दिया था, कोई स्कीम का आपने आंसर दिया था शायद, कुसुम स्कीम का आपने बताया था या फिर कोई दूसरी स्कीम थी? दो स्कीम्स मैंने आपसे पूछी थी। एग्री मैम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। हाँ, लेकिन शायद इन दोनों में से कोई एक स्कीम में आपने आंसर पूरा किया था, बट आपने लास्ट में उसके बाद में ये बोल दिया था अभी मैं इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ, शायद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बोला था क्या आपने? यस मैम। हम्म। तो ऐसे केस में ना, मतलब अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा वो आंसर, अगर आप बिल्कुल न्यू हो उस आंसर के लिए, तो आप बोल दो कि सर आई एम सॉरी या मैम आई एम सॉरी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अगर आपने उसका थोड़ा सा भी आंसर दिया है ना, तो आप थोड़ा सा देख के रुक जाओ, उतना सफिशिएंट है। आप आगे मत ये मत बोलना, क्योंकि आपको नॉलेज है, आपको आता है, आपने बोला है सही, तो आप ये मत बोलना उसके आगे कि अभी मैं इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ। अगर वो बोले कि आप वो इसके बारे में और कुछ जानती है, तब आप बोलना कि अभी तो मैं इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ, बट मैं डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ लूंगी, ऐसे। बाकी सब आपका ऑन पॉइंट था, और बाकी आपने नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है, और आप बोल भी कॉन्फिडेंटली रहे थे, आपने सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए। एंड कीप इट अप, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, और आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा है। ऑल द वेरी बेस्ट। मैम, मुझे क्वेश्चन पूछना था मैम, जैसे आपने वो वुमेन्स मतलब सेफ्टी के लिए जो बोला मैम, उसमें मैम मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आंसर करूँ मैम, मुझे एक बार बता दीजिएगा। हाँ जी, तो देखो, फीमेल में सबसे पहले तो जहां से आपने स्टार्ट किया, सेफ्टी के पर्पज से आपने जहां से स्टार्ट किया कि मैं हमेशा बाहर रही हूँ, तो मुझे अवेयरनेस रहती है, मुझे पता है कि मुझे कैसे चीजों को टैकल करना है। आपको स्टार्ट ऐसे ही करना है, बट आप आगे चल के ये बोल देना कि सर जब भी मुझे कहीं किसी रिमोट लोकेशन पे जाना होगा, तो मैं कोशिश करूंगी कि अगर मैं वहां जा रही हूँ तो मैं अपनी सेफ्टी के कंसर्न में, मतलब ध्यान में रखते हुए, मैं अपने किसी भी घर वालों को या फिर ब्रांच में या फिर किसी को भी बता के जाऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ठीक, आप एक ये चीज बोल सकते हो कि उन लोगों को पता होना चाहिए कि वेर आई एम विजिटिंग, कि अगर मेरा फोन ना लगे या कुछ ना हो तो वो लोग परेशान ना हो। दे शुड नो मैं कहाँ जा रही हूँ। एक ये सेफ्टी कंसर्न कि उन लोगों को पता होना चाहिए। और प्लस, काफी लोग ये बोलते हैं, बट अगर आपको नहीं बोलना तो आप नहीं भी बोल सकते हो कि सर आजकल तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं कि आप अपने घर वालों को अपनी रियल टाइम लोकेशन भेज सकते हो। तो मैं हमेशा, क्योंकि मैं बाहर रहूंगी, ऑब्वियसली हमेशा बाहर रहूंगी, तो मैं अपनी रियल टाइम लोकेशन उनको भेज दूंगी, या फिर अगर मेरी कोई भी कलीग है और मुझे पता है मैं ऐसी कोई लोकेशन पे जा रही हूँ जिसका बैक हिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो मैं उस कलीग को अपनी वो लाइव लोकेशन भेज कर जाऊंगी, ताकि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं उसको पता हो कि मैं कहाँ हूँ, ऐसे। मैम, और मुझे वो आउटफिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था हम्म। मैम। एक्चुअली मैं साड़ी पहन रही हूँ, जो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि मैं पहनूं, बट हम्म। हाँ मैम, मैं सूट में ज्यादा कंफर्टेबल थी, बट मैं अपनी पेरेंट्स की बात सुनते हुए साड़ी पहनी हूँ। तो क्या उससे भी कोई क्रॉस क्वेश्चन मैम बन सकता है कि मुझे प्रिपेयर करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ड्रेस पे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं बनता है। बट हाँ, एक चीज आप ध्यान रखना, जैसे कि आपने बोला आप कॉन्फिडेंट ज्यादा साड़ी में नहीं होते हो, सूट में ज्यादा होते हो, तो एक बार ना आप वो अटायर पहन के, मतलब साड़ी पहन के, फिर एक बार प्रैक्टिस करना इंटरव्यू की। चल के आना, चल के देखना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जब कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो तो आप वहां जाके फिर कॉन्फिडेंट कम हो जाओ या कुछ, क्योंकि आपने बोला आप सूट में ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो। और फिर भी अगर आपको साड़ी ही पहननी है तो फिर आप उसको पहन के प्रैक्टिस करो।